Oh, sorry, my mic was off by the way. Yes. Am I audible, Alia? Yes, sir. जी हाँ. Your answer is correct है ना? B will be the correct answer. आसान चाहिए तो उतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं. क्रॉस हैंडल वो हम ढूंढ रहे तो हमको मिला नहीं. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, आपको एक का साइक्लोहेक्सेनोन, what we need to do, we need to expand the C double bond O formula. So this is C double bond O, and for the next one I have to expand the alpha hydrogen, right? The alpha carbon. So I will keep the cyclohexanone like this, and I will expand the alpha hydrogen. This is my alpha hydrogen. So what's going to happen in this case? This hydrogen is going to go here, and this both of these carbon are going to make a bond, right? So I will get something like this. So this carbon atom, it initially had OH, and my carbon double bond will be like this. Here, obviously, we are going to have a hydrogen atom, and now it is having 4 bonds. We'll remove the water because condensation is happening after some acidic hydrolysis, and we will get the mentioned product. That is the B option, correct. So we'll try this another question. This is visible. Look at the reagent and see what are the different carbonyls or CO bond it can reduce. Hmm. No answers. Do you need help, Alia? No, sir. 1 minute. Okay. Correct. So this is a mild reducing agent, so it can only reduce the carbons and the aldehydes. Ester or carboxylic acid को ये reduce नहीं कर सकता है. That's why this will be intact as it is. This will be reduced to OH. So the option correct is this D option. Try this.
सर अच्छा इसके ये ऑप्शन रिएक्शन नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखिए, ऑप्शन नंबर ए का कहना है कि A4 के लिए है, B1 के लिए है, C2 के लिए है, D3 के लिए। ऑप्शन सी का कहना है कि A1 है और बी के लिए 4 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 2 है। समझ में आया? जी जी। आई थिंक ए ऑप्शन को ही अगर आप सही से पहचान लें देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए या तो 4 है, या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 2 है। एक बार में ही आंसर आ जाएगा। हाँ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दिस इज कैटरमैन कोच रिएक्शन, है ना। बाकी आपके पास दिस इज योर हैलो फॉर्म रिएक्शन। ये आपका क्या है, यहाँ पे अल्कोहल एंड एसिड esterification रिएक्शन, एंड देन X2 रेड फास्फोरस एंड वाटर, दिस इज हेल्वोल हार्ट, ये ना HVZ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, मूविंग, ट्राई टू डू दिस वन। IUPAC name of the organic compound formed by the following chemical reaction. Draw the structure of acetone, do the reaction of Grignard reagent, add water, you will get it. Let me know if you need help. Yes, correct option. So we have acetone, which has structures CH3, C double bond O, and here we are adding C2H5, that means two carbon atoms, and MgBr. So we'll get a product where you have OH here, and in this carbon atom there will be two more carbon atoms. If I will write the name, the number will start from here: one, two, three, four. There's a methyl in the second carbon atom, so it will be two methyl butane alcohol. So this three options. Try this. The reaction between benzaldehyde and acetophenol. Also look at the reagent that we are having.
Sir. Yeah, tell me. You have sent the answer. Sir, Sorry, I can did you not get. explain cross Cannizzaro reaction? I don't think I've heard it before. देखिए क्रॉस कैनिज़ारो कुछ होता है इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन ही जो होता है उसमें इफ यू आर गोइंग टू टेक टू डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना कि जैसे आपने मान लीजिए क्या ले लिया फॉर्मल्डिहाइड ले लिया ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है और पेंसिल डी ले लिया तो इसका भी क्या हो जाएगा कैनिज़ारो और इसका भी क्या हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन ठीक है तो लेकिन क्रॉस कैनिज़ारो ऐसा कुछ होता नहीं क्रॉस कैनिज़ारो नहीं मीन इट्स नॉट लाइक इफ यू आर गोइंग टू टेक टू डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो आपको प्रोडक्ट कुछ और मिल सकता है इसका आपको क्या मिलेगा यू विल गेट वन अल्कोहल फ्रॉम हियर CH3OH और इसका मतलब इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस भी कर दे रहे हैं आई एम एडिंग वाटर आल्सो आई विल गेट HCOH है ना ठीक है सही है ये सुनो इसमें भी सेम चीज होगा इसका आपको बेंजाइल PHCH2OH मिल जाएगा रिडक्शन और आपको क्या मिल जाएगा PHCOH मिल जाएगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन ठीक है तो क्रॉस कैनिज़ारो में कुछ नहीं होता वो बस नाम उन्होंने दिया होता है गॉट दिस Yes, sir. ट्राई दिस ठीक है यू कैन अंडरस्टैंड ना कि ये भी एनसीईआरटी से ही है राइट ये भी एनसीईआरटी में आपके Yes, पास sir. है लाइक आफ्टर दिस टू क्लोरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय OH और एक कार्बन में दो OH जो होता है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल सो उसके बाद यहाँ से ऐसे वाटर निकल जाता है राइट सो यू विल हैव C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन तो पहले से इसके पास था तो वो हाइड्रोजन बच जाएगा चलिए ट्राई दिस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही होता है तो उससे बाहर आपको जाने की जरूरत है नहीं सही है तो बेंजोइल क्लोराइड ये क्या हो गया रोजेनमैन रिडक्शन हो गया जो कि आ चुका है कई बार आ चुका है ये ट्राई कीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन you have to get give the intermediate as well as the product
Sir, can you explain this? Mhm. So here we have CH3 carbon with a triple bond and CH. Mainly यहाँ पे water को add करना है. So in water we know that we have two components. एक आपके पास hydrogen और एक आपके पास OH होता है. So OH is the negative part and hydrogen is the positive part, right? Whenever we do addition and if we don't have any condition which is going to give you radicals, वहाँ पे Markovnikov addition होगा. That means the negative part is going to go on the carbon atom which is having less number of hydrogen. सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा that will be addition reaction जिसमें carbon carbon pi bond is going to break the first step and you are going to get CH3 carbon double bond carbon. This carbon atom it is going to get one hydrogen. This carbon atom is going to get OH. Got this? Yes, please tell me. Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. OH is like this. So this is our intermediate, है ना? यहाँ पे देखिए this oxygen atom it is attached with hydrogen. Hydrogen is going to be losing electrons to oxygen atom because oxygen is more electronegative and it will be having a very highly delta positive charge. And just here it is having a pi electron cloud. Now you know that pi electron cloud is above and below the atoms, right? The nuclei and the atoms is ऊपर और नीचे होता है pi electron cloud. So the electrons will be negatively charged and there will be a very quick flow of electron from the pi bond to the hydrogen atom. This will make the carbon atom form a bond with hydrogen. Hydrogen will lose the electron that oxygen was having and it will shift here. So this is basically the mechanism of tautomerism, where you're going to get CH3 carbon with double bond O, and this pi bond is going to break. The carbon it had two hydrogen, now it will get three hydrogen, so you'll get CH3. This is your intermediate A, and this is your product B. Acetone देखते हैं. Acetone तो सही है, ये गलत है. This intermediate is सही. This product is wrong. Intermediate is wrong. D option बचा सिर्फ आप तो. The intermediate A is correct. D product B is also correct. ठीक है. Write this down. Let me know if you have done writing. फिर आगे बढ़ते हैं. Done, sir. Which of the following acid will form anhydride on heating and acid amide on strong heating with ammonia? Rupa, should I explain? Let me know.
हाँ ठीक है, सही है। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट, यहाँ से ऐसे वाटर निकलेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बोले हुए, एसिड एनहाइड्रेट ऑन हीटिंग एंड एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। अगर साथ में हम अमोनिया रख दें इसके, ठीक है। सो अगर हम साथ में यहाँ पे अमोनिया रखेंगे तो, अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। इसी में हम आगे दिखाते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होगा। ओके आलिया, गॉट दिस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे Yes. आपको नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन आप समझ लीजिए यहाँ पे, फिर से ऐसे वाटर निकलेगा यहाँ से एंड यू विल फॉर्म। ये बस याद करने के लिए, मैकेनिज्म तो नहीं सिखा रहे हैं। NH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज बेसिकली हैलेमाइड का जो रिएक्शन होता है, दिस इज हैलेमाइड। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, ट्राई दिस। ये आसान है, तुरंत हो जाएगा। Let's try this. थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो गए इस मामले में कि एक्सटेंसिव वर्ड आपने देख के आंसर लिख दिया, है ना। तो वर्ड तो एक्सटेंसिव सही है, देयर इज एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इट इज नॉट वाया वन टू वाल्व प्रोसेस। When we have R, C double bond O and OH, carbon and OH like this, और यहाँ पे ऐसे R होता है, then in this case we have a hydrogen bonding between these two and hydrogen bonding with these two. So there is an extensive hydrogen bond, and that is why there is an association of the carboxylic acid. ठीक है, तो we will write with the formation of intermolecule. This is one molecule, this is another molecule. इन दोनों के molecule के बीच में hydrogen bonding हो रहा है उसी वजह से. Now this association and this is what extensive hydrogen bonding. I think extensive word से आप थोड़ा confuse हो गए. ठीक है, बट द आंसर में आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना जरूरी है। इसको बना भी लीजिए, डाइमराइजेशन हो जाता है, ये भी सवाल आ सकता है। Answer.
ओके, देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, दीज आर नॉट बेंजीन रिंग्स है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो कार्बोक्सिलिक आयन जो बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड ओनली बाय द माइनस साइन इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो वो ऑक्सीजन एटम इज नियरर इन द सेकंड केस, तो सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। थर्ड में वी हैव ऑक्सीजन एटम बट इट इज फर्दर अवे, सो दैट इज व्हाई थर्ड सेकंड में आ जाएगा। एंड वन का सबसे कम होगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टेबलाइजिंग फैक्टर देयर, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। भैया आपने आंसर किया है। ट्राई दिस। यस, आ गया मेरे पास। ठीक है, so when we are having any electron withdrawing group that is attached to the benzene ring, it will increase the reactivity towards any substitution. है ना? तो यहाँ पे NO2 group है, that is going to do what? Pull the electron via minus M effect. That is why option A will be hydrolyzed first. Try another question. Option number D. सबसे पहले तो जो एसिड होगा सबसे ज्यादा तो उसी का होगा, नो डाउट इन दैट, है ना। उसके बाद वी हैव अदर, जहाँ पे आपके पास वाटर है एंड अल्कोहल, एंड देन यू हैव व्हाट, वाटर अल्कोहल, और फिर आपके पास अल्काइन। सो ऑब्वियसली हाँ, ये ऑप्शन आपने सही दिखा है, दैट इज द डी ऑप्शन। Carboxylic acid will be the most acidic, then followed by water, and alcohol is always less than water, and उसके बाद जो alkyne होता है वो तो और कम होता है। ठीक है, because in the alcohol RO negative is having the negative charge, और alkyne में carbon atom, भले ही वो कार्बन एटम इज sp hybridized, दैट इज व्हाई its electronegativity is higher, बट स्टिल वो कार्बन ही एटम है, तो जिसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, तो ऑक्सीजन से तो वो क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ट्राई नेक्स्ट वन।
Sir, can you explain this? अच्छा जस्ट यहाँ पे देखिए सवाल में कुछ कुछ चीजें उन्होंने दिया हुआ है that we have a C2H6 type of C2H6 ऑक्सीजन आए यानी कि either it will be aldehyde ketone कार्ब और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं होगा या फिर अल्कोहल हो सकता है बट वी हैव टू लुक एट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने के लिए व्हेन यू हैव ऑक्सीजन एटम ना तो ऑक्सीजन एटम अपने साथ एक हाइड्रोजन लेके हमेशा आएगा इफ इट इज अल्कोहल ठीक है तो यू कैन सी दैट इट इज व्हाट C2H6O अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तब भी C2H6 रहता दैट मींस इट इज व्हाट इट इज अल्कोहल ओनली यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि देयर इज नो डबल बॉन्ड हियर ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग को हम ये बता देते हैं जैसे अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन आया ना तो जितने हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन +1 करके कंपेयर कीजिएगा कहाँ कंपेयर कीजिएगा बता रहे नाइट्रोजन आया तो हाइड्रोजन -1 करके कंपेयर कीजिएगा ऑक्सीजन आया तो जितने हाइड्रोजन है उतनी हाइड्रोजन रख के कंपेयर कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CH3Cl है एंड हियर यू हैव टू फाइंड CH3Cl में तो डबल बॉन्ड नहीं होगा लेट्स सपोज आपके पास ऐसा कुछ है C2H5Cl है ठीक है आपको काउंट करना है इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है तो एक क्लोरीन है ना एक हाइड्रोजन है आपके पास तो हाइड्रोजन हटाइए और एक ऐड कर दिए हाइड्रोजन में तो क्या मिलता है आपको C2H6 तो क्या C2H6 में कभी डबल बॉन्ड हो सकता है नो देयर कैन नॉट बी एनी डबल बॉन्ड बिकॉज ये एल्केन का फॉर्मूला है वही अगर नाइट्रोजन होता तो आपके पास कुछ इस तरह से रहता C2H7 नाइट्रोजन बिकॉज देखिए CH3CH2NH2 ठीक है तो बेसिकली नाइट्रोजन जब आ रहा होता है ना तो था तो पहले ये क्या इथेन मान लेते हैं इसको हम इथेन आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो CH2 हो गया और इसके बदले आपने क्या लगाया एक नाइट्रोजन लगाया और दो हाइड्रोजन लगा दिया हटाया एक हाइड्रोजन लगाया दो हाइड्रोजन दैट इज वाई व्हाट डू वी डू जब भी नाइट्रोजन रहेगा आपके पास देन यू विल रिमूव वन हाइड्रोजन C2H6 हो जाएगा उसके बाद कंपेयर करके क्या C2H6 कभी एल्कीन के अलावा कुछ और हो सकता है इन्हीं डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता है उसी तरह अगर आप देखेंगे अल्कोहल के लिए तो CH3CH2 उसके बाद OH आपने एक हाइड्रोजन हटाया एक हाइड्रोजन लगाया ठीक है सो इन दिस केस ऑल्सो आपको बस ऑक्सीजन हटा के जितने भी हाइड्रोजन उन्होंने दिए हुए ना कितने 3 2 5 और 1 6 वो कंपेयर करना रहता है वो अलग अब निकल जाएगा बट यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा फॉर्मूले से दैट इट इज व्हाट इट इज अल्कोहल दो कार्बन का अल्कोहल में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दैट इट इज विल बी लाइक दिस कितना समझ में आया आपको ये ऑफिशियल में नहीं आया क्या नहीं Yes, आया sir. नहीं आया हो सकता तो बता दीजिए आ गया पक्का कि अल्कोहल तो यही होगा Sir. ठीक है तो एक्स हमको मिल गया एक्स विल बी व्हाट इथेनॉल है ना तो आ Yeah. गया क्या आंसर आंसर आ गया क्या देखिए जरा अच्छा आंसर तो यहीं पे आ गया है ना इथेनॉल एक्स इथेनॉल और तो कोई नहीं है नहीं. एसिटाल्डिहाइड नहीं है चलिए ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं है ना उसके बाद दे आर सेइंग कि इसमें आपने क्या किया कॉपर एट 573 केल्विन तो इससे क्या होगा इट इज गोइंग टू गेट व्हाट बताइए एक सेकंड C2H6O ये फॉर्मूला सही नहीं है क्या C2H5 वो होता अगर ये रहता डबल बॉन्ड रहता तो बट ये 573 केल्विन में रिएक्ट कैसे करेगा हम्म, कुछ सही नहीं है भाई नीट 2017 लेकिन C1 सेकंड कॉपर और 573 केल्विन में तो क्या बोलते हैं आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मिथॉक्सी मीथिन दिया हुआ है इन लोगों ने लेकिन यहाँ पे
चलिए ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, दिस विल बी कन्वर्टेड हियर लाइक दिस, लेकिन ये ऑप्शन कभी ऐसा है ही नहीं। अच्छा, दी अदर वे कुड बी, ये अल्कोहल की जगह क्या हो सकता है? अल्कोहल की जगह ये ईथर भी हो सकता है ना, CH3 OCH3। हाँ, लेकिन एक्स जो है वो कभी एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड ये है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो गलती कर दिया है। हमको लगता है ना ये ऐसा कुछ इन लोगों को लिखना देता है। देखिए एक सेकंड रुक जाइए जरा, ये रिएक्शन वगैरह सब कुछ तो सही है, लेकिन ये ऑप्शंस में फिट नहीं बैठ रहा है। आई थिंक ना ये ऐसा कुछ होता है, C2H6O, इसको आप कॉपर के साथ कीजिए तो आपको मिलेगा ए। ठीक है, ए का जब आपने Ag और NH3 वाला किया तो आपको मिलेगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया नहीं है ना। हाँ ठीक है, चलिए आई थिंक सो। ठीक है, फिर भी जरिए देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला है अगर आपने OH नेगेटिव और हीट किया तो आपको मिलेगा वाई, और उसके बाद आपने अगर NH2 NH C डबल बॉन्ड O और NH2 किया तो आपको मिलेगा Z। आई थिंक ये सवाल होना चाहिए। अब देखते हैं शायद फिट हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा C2H6, आपके पास अल्कोहल हो गया, ये हो जाएगा 1 to 2 कार्बन एटम्स और उसमें CHO, ये हो जाएगा इथेनॉल, है ना। सही है, यहाँ पे आपको समझ में आया इथेनॉल होगा, ये सुनो। Yes, यस sir. आलिया, ठीक है। उसके बाद Ag के साथ ये सिल्वर मिरर दे रहा है, तो होपफुली ये एक्स होगा। तो अगर ये एक्स होगा ना, देन इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक्स विल बी C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो 2 कार्बन एटम, दैट मीन्स इथेनोइक एसिड होगा। ये तो आपके पास ए हो गया। एक्स जो होगा दैट विल बी इथेनोइक एसिड, है कहीं इथेनोइक एसिड? जी सर। नहीं, और है लेकिन ऑप्शंस में वो फिट नहीं होगा फिर। इथेनॉल तो सही है। अच्छा यार, हमको देखना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ, हम सवाल निकाल के लाते हैं नीचे वाले पेपर से, तभी जाके मिलेगा हमको। अदरवाइज दिस इज मिस्टेक 2017। ये वैसे ही जैसा सवाल में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस अलग हैं क्या? अच्छा, ऑप्शंस यहाँ पे सही नहीं थे, बिकॉज ये देखिए ना, ये हमको समझ नहीं आता, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इथेनॉल हो और एक्स एसिटिल्डिहाइड, ये दोनों तो सेम ही चीज होता है ना। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन एटम का एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड भी क्या होता है? 2 कार्बन एटम का एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है? इथेनॉल, और एक्स होगा इथेनॉल, फिर ब्यूट। हाँ ठीक है, चलिए ये ऑप्शन वाला तो समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला आपके पास रिएक्शन हो गया, और आपको क्या मिलेगा? एक्स की जगह इथेनॉल, और ए की जगह आपको मिलेगा क्या? इथेनॉल, 2 कार्बन एटम का CHO। एक्स जो हमारे पास था OH, ए जो होगा, जो हम लोग अभी तक करके आए थे, C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। उसके बाद AgNO3 के साथ सिल्वर मिरर हुआ, यानी कि ए इज माई एल्डिहाइड। उसके बाद OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव एंड विद अ बिट ऑफ हीट। तो जब OH नेगेटिव और हीट रहे तो समझिएगा एल्डोल कंडेंसेशन ना, ये OH नेगेटिव से एल्डोल, उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। इसको वैसे तब ही आंसर आ गया आपके पास
ए आपके पास क्या इथेनॉल है और एक्स इथेनॉल। जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा इथेनॉल का, देन यू विल हैव CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन इधर। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड CHO, तो ये इधर जाएगा। एंड उसके बाद यू विल गेट 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, इसमें चौथा कार्बन एटम CHO है, उसके बाद एक कार्बन एटम CH2, एंड देन हियर यू आर हैविंग OH। इसको अगर जब हम हीट करेंगे, सो यहाँ से H2O निकलेगा एंड यू विल गेट 1 2 3 4 CHO एंड डबल बॉन्ड हियर। तो ये क्या है, ब्यूट, सेकंड कार्बन, वन कार्बन, टू कार्बन में ईन, इट इज एन एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनल हो गया। और उसके बाद फिर तो दिस इज सेमी कार्बोजाइड, इसमें किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होगा तो सेमी कार्बोजोन मिलेगा ही। ठीक है, तो दिस सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कॉपी कर लीजिए जरा। लेट मी नो वंस you're done. Yes, Arya, let me know once you're done. None, sir. Let us try एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद करते हैं। Try this options देना होगा ना, options, yeah. एक ईस्टर है विद फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ ईस्टर का। Was treated with excess of CH3 MgBr and the complex so formed was treated with H2SO4। एक कॉम्प्लेक्स बना, उसको फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। एंड टू गिव एन ऑलिफिन, ऑलिफिन मतलब होता है एक एल्कीन मिला आपको। एल्कीन का जब ओजोलिसिस कराया, यानी कि एल्कीन का जब ओजोलिसिस कराया, तो आपको एक कीटोन मिला जिसका फॉर्मूला C8H8O है, जो कि पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए बताना है। ट्राई कीजिए इसको जरा, इंटरेस्टिंग सवाल है।
Yes, Alia, do you need help? Yes, very good. It is correct. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गेट, रिएक्शन थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके अगर हम बताएं इसको, आपके पास ईस्टर है, सी एस थ्री एम जी बी आर, उससे आपको मिलेगा अल्कोहल, अल्कोहल का H2SO4 से रिएक्शन कराइएगा तो आपको मिलेगा एल्कीन, एल्कीन को ओजोनलेस कराने से आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। अब यहाँ पे बात है कि कितने कार्बन का हमको, कितने कार्बन का एल्डिहाइड, कितने कार्बन का कीटोन, या फिर जो भी हमको एल्कीन भी अगर मिलने वाला है, देन एल्कीन इज गोइंग टू बी ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स। तो उसके लिए द इनिशियल ईस्टर जो हमारे पास है, इनिशियल ईस्टर में हमारे पास C9H10O, ठीक है। एंड वहां पे बेसिकली ये पता करना मुश्किल होता है कि ईस्टर, अब बहुत सारा ईस्टर बन सकते हैं ना ऐसे, तो आपने C डबल बॉन्ड O यहीं पे कर लिया, उसके बाद एक दो कार्बन एटम, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, बट यहाँ पे फिर से काम आएगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। C9H10O2, C9 अगर है आपके पास तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? 9 2 18 प्लस 2 20 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कितने की है? 10 की। दैट मीन्स हियर देयर आर व्हाट 10/2 अगर हम करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा आपके पास 5। यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक तो समझ में आ रहा है कि ईस्टर की वजह से होगा, डबल बॉन्ड O की वजह से, एक तो समझ में आएगा। अब जब भी आपके पास तीन, नहीं तीन, हाँ तीन से ज्यादा अगर आपके पास हो ना, तो वहां पे आप एक जो पॉसिबिलिटी होती है बेंजीन रिंग की होती है, वहां से एक तो बेंजीन रिंग आपको नजर आना चाहिए कि बेंजीन रिंग में क्या होता है आपके पास, यू हैव 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक आपके पास रिंग हो गया और 3 पाई बॉन्ड, टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाते हैं 4। और उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास एक और इसकी वजह से, ईस्टर की वजह से, तो टोटल 5 हो गए यहाँ पे। अच्छा, नाउ इफ आई एम गोइंग टू लुक एट कि ईस्टर वाला कंपोनेंट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, या तो ऑक्सीजन ऐसे हो, C डबल बॉन्ड O 6 और एक कार्बन, दो कार्बन, हाँ ठीक है, 1 2 3 इधर 6, ठीक है। तो आइदर यू विल हैव दिस मॉलिक्यूल, या फिर आपके पास एक जो मेजर पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, C डबल बॉन्ड O एंड O, यहाँ कितने होंगे? 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ और भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हो सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो, यू हैव डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यही पॉसिबिलिटीज में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है। कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इग्नोर किया जा सकता है? द बी ऑप्शन कुड बी इग्नोर, बिकॉज यहाँ पे जो ईस्टर इज हैविंग 6 + 6 12 और एक 13, 13 कार्बन हो नहीं सकते। 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन, 8 कार्बन भी हो नहीं सकते। अच्छा, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या? 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन और 9 कार्बन, तो यहाँ पे आपके पास 9 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी आपके पास 9 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी और ए के साथ हम लोग कुछ खेल सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में आपके पास मामला काफी आसान है। ऑप्शन ए में आपके पास ये वाला है ना, इसको करते हैं, ठीक है। अगर इससे सारे रिएक्शंस हो जाएंगे तो यही हमारा कंपाउंड है, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे? डी वाले ऑप्शन। सबसे पहले क्या करना है? CH3 MgBr, क्या प्रोडक्ट मिलेगा इससे? यस आलिया, एनी आइडिया? इससे प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, ये बेंजीन रिंग तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होता बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यू विल हैव पहले स्टेप में CH3 MgBr, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह भी सब कुछ बढ़ा देंगे, सेकंड स्टेप में H2O वगैरह लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको तो HOH मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा, ये ग्रुप तो पूरा निकल जाएगा, जैसा कि हमारे पास एज सुन एज यू ऐड वाटर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा और ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। सो इट विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, एंड बचेगा क्या आपके पास? ये CH3 आगे अटैक किया तो दिस CH3 विल बी रिमेनिंग, ओके। अब उसके बाद जब आपने हीट किया तो आपको एक एल्कीन मिल जाएगा, एंड द एल्कीन इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
अच्छा वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक्सेस ऑफ Mg3 CH3 MgBr दिया है ना, इसमें तो पहले आपको सी से आंसर आएगा हमको लगता है, लेकिन यहाँ पे तो सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड ओ इस तरह के एक मॉलिक्यूल मिलेगा, और इसके बाद आपने फिर से CH3 MgBr अगर कराया तब जाके अल्कोहल मिल जाएगा। तो उस अल्कोहल में देर विल बी टू CH3s, एक तो OH यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दो CH3 आएंगे, एक CH3 MgBr पहले से आया, इस फर्स्ट स्टेप से एक CH3 MgBr एक्सेस था, तो एक और उसके बाद अल्कोहल बने, देन वी कैन डू द alkene formation। तो इस विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, इन दोनों में हाइड्रोजन है, इन दोनों में से किसी एक में से हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बन गया। इसके बाद ओजोनलिसिस होगा, दिस इज CH2। ओजोनलिसिस में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, सो वी विल गेट बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा CHCHO, दिस विल बी द अनदर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करते हैं, ओजोनलिसिस गिव्स अ कीटोन, ठीक है, और वो क्या देगा आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यस, दिस इज गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज आपके पास मिथाइल कीटोन वाला फॉर्मूला बाकी है यहाँ पे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 6, 7 एंड 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज, आपने इसका रिएक्शन से एक बार लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव बेंजीन रिंग, जो कि ईस्टर से रिएक्ट करके C2H5, बेंजीन रिंग एंड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr, ये शायद ना CH3 MgBr। सबसे पहले यू आर गोइंग टू गेट ये CH3 यहाँ पे जैसे अटैक करेगा ना, तो ये निकलेगा बाहर और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, तो एज ए इंटैक्ट रहेगा एंड यू विल गेट CH3। अब बिकॉज यू हैव एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, it will again react and it will going to give you a कीटोन है, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको, दिस OH विल बी फाउंड, और एक और CH3 मिलेगा। इसके बाद जब आप H2SO4 डालेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 द अल्कोहल इज गोइंग टू अंडरगो इनटू डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन होगा, और आपको एक क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ओजोनलिसिस करेंगे, तो जनरली जब ओजोनलिसिस होता है तो उसको रिडक्टिव ओजोनलिसिस लेते हैं, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, और एक यहाँ पे बेंजीन, डबल बॉन्ड O प्लस HCHO। इस पूरे स्कीम को लिख लीजिए। Let me know, Alia, if you're done.